was all about the last two eclipse. 21 जून का eclipse था और 5 जून का था, एंड द थर्ड eclipse जो हम बात कर रहे हैं वो है 5 जुलाई का। ये जो 5 जुलाई का eclipse है ये इंडिया में नहीं लग रहा है, ये इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रिपल eclipse बट इट इज नॉट फॉलोइंग इन इंडिया। ये मेजरली आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, मैक्सिको, अर्जेंटीना, फ्रांस, इन एरियाज में लगने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो मैंने वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। आई एम राइट नाउ मैं आपको इसका एक रिजल्ट बताऊंगा कि कहाँ इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अब जो 5 जुलाई की जो आप 5 जुलाई इक्लिप्स की जो हॉरोस्कोप देख रहे हैं उसमें इक्लिप्स जो फॉल कर रहा है आपके 5th हाउस ऑफ फाउंडेशन चार्ट ऑफ यूएसए। मैंने यूएसए का चार्ट लिया लियो लगन का, जिसमें उसके 5th हाउस के फाउंडेशन चार्ट पे इसका इक्लिप्स लग रहा है, जिसमें जुपिटर, मून, केतु जो है कंजॉइन करेंगे मून नक्षत्र में, एंड विल बी गेटिंग वेद फ्रॉम द सन, मर्करी and Mars. So Rahu will be giving visa to Uttarashara Nakshatra, where Jupiter, Saturn, and Pluto will be there. That clearly shows कि US, New York, UK, Mexico, Africa, Portugal, Spain, New Zealand, French, Polynesia, and France can face some sort of political upsets, some sort of problem in their government working, anarchy, unrest, chances of financial losses, financial crisis, and the problem in the health sector, instability in the government work, and we can see some sort of harm to the public property by the masses and the common mass and the rioters or the people those are against the government working. So ये जो eclipse है ये इसका मेजर इम्पैक्ट रहेगा इन कंट्रीज की गवर्नमेंट वर्किंग पे। तो ये जो कंट्रीज रहेंगी इनको इनकी गवर्नमेंट वर्किंग थोड़ी वीक पड़ जाएगी आफ्टर दिस इक्लिप्स। इन कंट्रीज का मेजर फोकस रहेगा फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की तरफ, सोशल रिफॉर्म्स की तरफ, स्कीम्स की तरफ। देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस दैट माइग्रेंट जो कंट्रीज हैं जो कनेक्टेड हैं बॉर्डर्स में, जो माइग्रेंट्स हैं, दे कैन क्रिएट इश्यूज to the government and the people living there. So उनको destroy मतलब disturb करने की कोशिश करेंगे। So these are the areas which get affected by the 5th July eclipse. Or after this eclipse, there are very chances that US stock market or financial market can fall or face some loss after 5th of July. Overall, this eclipse is not good for the government working. मतलब वहाँ जो इन countries की government के लिए जो सरकार है यहाँ पर जो leaders के लिए, it is not a good for eclipse. It will be not good for the finance. It will not be good for some financial things के लिए, financial schemes के लिए. This will disturb the government working in the eclipse. So this is all about the triple eclipse. So what I have explained and what I observed in the all these three eclipses. But eclipses के बाद कुछ ये points हैं जो कि ब्रीफ समेता में mention किए हैं. We should have to understand. Okay, these are the observations which we need to observe after the post eclipse. Like if there is termination of eclipse, there should be a dust storm in the place within 7 days. Then it will cause famine. अगर eclipse के बाद dust storms देखी जाती है 7 दिन के अंदर, then it will cause famine to the country or the place जहाँ पर हम eclipse को देखेंगे. This first point we have to observe. Second point देखना है कि अगर heavy mist होती है किसी country में, किसी जगह पे जहाँ पर solar eclipse देखा जाता है, तो there will be outbreak of disease. तो डिजीज फैलने के चांसेस रहेंगे। अगर अर्थक्वेक आता है आफ्टर द एक्लिप्स, then there could be death of leading king. It will trouble for the leading king. Leading king means a minister or the leader of the country. उसके लिए harmful रहेगा. And if there will be some meteors दिखाई देता है after the eclipse, then there could be some the destruction of a minister. मतलब ministers के लिए harmful रहेंगे meteors. It could destroy the minister health or life something. And और अगर eclipse के बाद clouds दिखे जाते हैं बहुत सारा different colors में, it will ignite the extreme panic. So these have seen in many of the cases in the past also. और अगर eclipse के बाद thunder होता है, there will be chances of miscarriages. और अगर there will be lightning after the eclipse, there will be trouble to kings and tusked animals. If there occurs a misty circle around the sun or the moon, so there will be chances of outbreak of diseases. और अगर there will be false fires in the quarter, मतलब एक fire circle दिखाई देता है, मतलब जो after eclipse के बाद, तो वो again it will be harmful to the kings and the danger from fire. तो वहाँ पर कंट्री में फायर आग लगने के चांसेस, और जो उस देश का राजा होता है या उस देश का जो मिनिस्टर्स होता है, जो लीडर होता है, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है. अगर इक्लिप्स के बाद ड्राई विंड्स चलती हैं तो पीपल विल फेस ट्रबल फ्रॉम रॉबर्स इन द कंट्री. इफ देयर विल बी क्लैप ऑफ थंडर और रेनबो और समथिंग लाइक, जैसे कि एक लाइन सी बनती है वेदर में, तो देयर विल बी डेंजर फ्रॉम फेमाइन, एन अटैक ऑफ एनिमी आर्मी. मतलब उस कंट्री के लिए फेमाइन का खतरा होता है और चांसेस ऑफ अटैक फ्रॉम एनिमी. So these are the things we have to observe after the eclipse. If there will be, और अगर eclipse के दौरान there is a planetary warfare, something like in the sign of Capricorn, there will be chances of war among the kings. अगर
मतलब इक्लिप्स के दौरान अगर प्लेनेटरी वॉर होती है कैप्रिकॉर्न में, दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट दीपक जी। अगर कैप्रिकॉर्न राशि में कंजंक्शन में इक्लिप्स के टाइम अगर कोई कंजंक्शन बनता है, तो इट कैन चांस ऑफ इग्नाइट वॉर अमंग किंग्स, मींस वॉर अमंग्स डिफरेंट कंट्रीज लीडर्स। और सेम टाइम पे अगर केतु कॉमेट दिखाई दिया दे, तो वो इस चीज को अश्योर करता है कि वॉर होने के चांसेस बनेंगे आफ्टर द इक्लिप्स। तो या तो वॉर लाइक सिचुएशंस होती है या वॉर के चांसेस बनते हैं। इफ देयर विल बी नॉर्मल रेन्स विदाउट एनी अननेचुरल फीचर्स, विद इन 7 दिन के अंदर अगर रेन्स होती है, तो एक्लिप्स के बाद वहां पर प्रोस्पेरिटी होती है, प्लेंटी ऑफ फूड रहता है, ग्रेन्स, क्रॉप्स, जो भी है। नेगेटिव इवेंट्स इतने ज्यादा नहीं देखे जाते हैं। तो इक्लिप्स के बाद रेनफॉल होना एक अच्छा शगुन माना जाता है शकुन शास्त्र में। So these are the things we have to observe after the solar eclipse. So this is all about the eclipse, impact of eclipse on the mundane world to India, world and all the countries. So we should have to observe this thing. Baki, whatever written in the destiny, whatever written in the country and the country destiny and the dunya ke desh mein jo, it is all play of the nature. It is all part of the play of the nature. Nothing in our hand. We are not doing anything. We are just a puppet of the nature, and we are doing this something like playing with the world and playing with the country and playing with the people. तो जो जो भी पैंडेमिक में हुआ और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये हमारे खुद का किया धरा है, एंड नेचर उसको बैलेंस कर रही है, नेचर रिवाइव कर रही है। बिकॉज जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो आफ्टर 5000 ईयर एंड मेनी ईयर्स हैव एक साथ बने हैं। लास्ट टाइम जब ये मिले थे एक साथ और एक्लिप्स हुआ था, तो बेबीलोन की सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी, एंड फ्यू इयर्स बैक दैट कुछ हुआ था, हस्तिनापुर हस्तिनापुर डिस्ट्रॉय हो गया था। सो इट इज अ रिवाइवल प्रोसेस। तो ये जो कंजक्शन है वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर रहा है, और एक्लिप्स उस वर्ल्ड ऑर्डर को बता रहा है कि किस एरिया में हमें चेंज। तो राइट नो नेचर इज रिवाइविंग द वर्ल्ड ऑर्डर, एंड नेचर इज रिवाइविंग द world, reviving the people, reviving the nature, reviving birds, animal, the people and the politics. तो जो भी वर्ल्ड की जो ग्रीड है वो टोटल चेंज हो जाएगी। पीपल विल बिलीव इन द पीस एंड ह्यूमैनिटी इन कमिंग 40 years and coming 60 years. This will totally change the people scenario, total mind setup. तो जो इक्लिप्स होते हैं ये एक रेयर एस्ट्रोनॉमिकल एक फिनोमेना है जो बताता है कि हाउ विल इट विल इम्पैक्ट द नेचर, हाउ विल सी द अर्थ एंड हाउ विल सी द impact on us. So this is all about Deepak ji, what we have observed in the observe impact of eclipses. आपका मोबाइल नंबर? दीपक जी मोबाइल नंबर तो मैंने शेयर नहीं किया, बट अगर लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, people want to meet me or people want to say, people can contact me in my mobile number, and that is 7006278941. People can send me message, call me message regarding whatever they feel like. उनको जो ये कैसा सेशन लगा, कैसा एक इंटरव्यू लगा, they can contact me and they can discuss me whatever they feel like. बहुत बढ़िया। मैं मानता हूँ कि शायद इतनी अद्भुत, इतनी अच्छी जानकारी एक 3 जो ग्रहण हैं उनके प्रभावों पे शायद ही कहीं पहले डिस्कस हुई है, इतनी अच्छी जानकारी। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है सबके लिए समझने का, और अपने जीवन को भी बेहतर करने का, राष्ट्र के जीवन को भी और मानव जीवन को भी बेहतर करने का मौका है। क्योंकि ये जो ग्रहण या कोई नेचर में परिवर्तन होता है वो हमें समझाने के लिए होता है कि अपने सही रास्ते पे आ जाओ। तो उसको समझना चाहिए मानव जाति को, और अपने जीवन को बेहतर करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा एक, जैसे कहते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है, जिसमें कंप्लीट एक साथ सारी जानकारी और इतना विस्तार से बताया गया है। जानने वाला, समझने वाला इसका लाभ उठा सकता है और इससे अपनी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। आगे अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपनी सोच में हम बेहतर बने, अच्छे इंसान बने, ताकि हम किसी के साथ भी अच्छा करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ अच्छा करेगा। तो मैं बहुत अच्छे वीडियो के लिए दिल से धन्यवाद देते हुए आभार के साथ नमस्कार बोलूंगा।